Today we are going to meditate upon 2 Corinthians chapter 3 verse 17. आज हम दूसरे कुरिन्ती तीसरा अध्याय उसके 17वें पद पर ध्यान देंगे। In that Paul the apostle says, उसमें प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है, the Lord is spirit, परमेश्वर आत्मा है and wherever the spirit of the Lord is, और जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा है there is freedom, वहाँ पे स्वतंत्रता है, there is deliverance. वहाँ पे छुटकारा है। Deliverance and freedom is a very important aspect in our life. स्वतंत्रता और छुटकारा हमारे जीवन का एक बहुमूल्य भाग है। So wherever the spirit of the Lord is, जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा है there is deliverance. वहाँ पे छुटकारा है। Who is the spirit of God? ये परमेश्वर की आत्मा कौन है? As Christians, all of us know एक मसीह होने के नाते हम सब जानते हैं that our God is a three-in-one God. कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। We have Father God, हमारा पिता परमेश्वर है, Jesus the Son, यीशु जो पुत्र है and the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा। Today I am going to tell you a very important fact of Christianity. आज मसीहत के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। Even many people of God, servants of God, do not understand this. ये कई परमेश्वर के जन तक ये समझ नहीं पाते। How can we explain this Trinity of our God? हम अपने इस परमेश्वर की त्रिएकता को कैसे समझा सकते हैं? If somebody asks you, how do you say that your God is triune God? How do you explain? अगर आपसे कोई पूछे तो आप कैसे समझाते हैं कि मेरा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है? कैसे आप बताते हैं? Sometimes you yourselves are confused. कई बार आप खुद इसमें भ्रमित हो जाते हैं। How can God be three persons at the same time? कैसे परमेश्वर एक ही बार में तीन अलग अलग लोग हो सकते हैं? Remember this example. ये उदाहरण को याद रखिए। Every day we see the sun. हर रोज हम सूरज को देखते हैं, But when we look at the sun, we are unable to see it. जब हम सूरज को देखते हैं तो उसको हम देख नहीं पाते। The sun is so bright and so glorious. वो इतना चमकीला है, तेजस्वी है, Nobody can go near the sun. उसके करीब कोई नहीं जा सकता। If one drop of the sun falls millions of kilometers away, that man will become ashes. अगर एक बूंद सूरज का कई लाख किलोमीटर दूर भी अगर गिर जाए तो मनुष्य राख बन जाएगा। Our Father God is just like the sun. हमारा परमेश्वर पिता उस सूरज के समान है। You cannot go near him. आप उसके पास नहीं जा सकते। That is why the Bible says, इसीलिए बाइबल कहता है nobody can see God face to face and live. कोई भी परमेश्वर का चेहरा देखकर जीवित नहीं रह सकता। Nobody can look at him. कोई उसको देख नहीं सकता। Even Moses could look at him only from the back side. मूसा तक उसको पीछे से ही देख पाया था। The Lord said, when I pass by, I will cover you with my hands. परमेश्वर ने कहा कि जब मैं तेरे सामने से गुजरूंगा अपने हाथों से तुझे ढांप लूंगा। So think of the sun as the Father God. इसलिए सूरज को पिता परमेश्वर के रूप में आप देखें। But can we live without the sun? मगर क्या हम उस सूरज के बगैर रह सकते हैं? No, we cannot. नहीं, बिल्कुल नहीं। We get the heat of the sun. हमें सूरज से गर्मी मिलती है, We get the light of the sun. हमें सूरज से ज्योति मिलती है। We can see everything only with the help of the sun's light. हम सिर्फ सूरज के ज्योति से ही सब कुछ देख पाते हैं। The sun's light helps life to exist on this earth. सूरज की रोशनी इस संसार में जीवन को कायम रखने के लिए Think चाहिए। of Jesus like the light of the sun. यीशु को उस सूरज की ज्योति के समान देखें। He was in the world with man. वो इस संसार में मनुष्य के साथ था। You can still see him. उसको अब भी आप देख सकते हैं। He took upon the human form. उसने मनुष्य का स्वरूप He लिया। is God who is manifest in humanity. वो परमेश्वर है जो मनुष्य जाति के ऊपर प्रकट And हुआ। there is another thing called the heat of the sun.
और एक और चीज है, वो है सूरज की गर्मी। The heat of the sun helps us do everything. सूरज की गर्मी हमें सब कुछ करने के लिए सहायता देती है। You cannot see the heat, आप उस गर्मी को देख नहीं सकते, but you can feel the heat of the sun. मगर उस गर्मी को आप महसूस कर सकते हैं। Without this heat, the earth itself will be like a swamp, a pond full of water. और इस गर्मी के बगैर ये पूरा पृथ्वी भी सिर्फ एक पानी का एक जलाशय रह जाएगा। The Holy Spirit is like that. पवित्र आत्मा वैसा है। You cannot see him maybe with your naked eyes, आप उसको अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते, but you feel his power in everything. मगर उसके सामर्थ को आप हर जगह महसूस कर सकते हैं। You feel his glory in everything. आप उसकी महिमा को हर जगह महसूस कर पाते हैं। The Holy Spirit was present from creation. पवित्र आत्मा सृष्टि के रचना से उपस्थित है। In the Old Testament, he was given to only certain people. पुराने नियम में बस कुछ ही लोगों को वो दिया गया था, To priests and prophets and kings. कुछ भविष्यवक्ताओं को, राजाओं को और याजकों को दिया गया था। He was given for the purpose of fulfillment of a calling. वो किसी के बुलाहट को पूरा करने के लिए दिया जाता था। But now we are living in a season where everyone has the gift of the Holy Spirit. मगर आज हम एक ऐसे वातावरण में जीते हैं जहां पे हर किसी के पास पवित्र आत्मा का वरदान है। The Lord gives His Holy Spirit to everyone who asks. परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हर किसी को देता है जो उसके लिए विनती करता है, पूछता है। Now when the power of the Holy Spirit is in you, अब पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके अंदर है, what happens to your life? आपके जीवन में क्या होगा? Do you need the Holy Spirit as a Christian? एक मसीह होने के नाते क्या आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है? Yes, every Christian needs the power of the Holy Spirit. हाँ, हर एक मसीह को पवित्र आत्मा के सामर्थ की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Without the Holy Spirit, इस पवित्र आत्मा के बिना we are just like dead Christians. हम मृत मसीहों के समान होंगे। Without His power, we are not alive. उसके सामर्थ के बगैर हम जीवित ना रहेंगे। That is why Paul says He is the deliverer. इसीलिए पौलुस कहता है कि वो छुटकारा देने वाला है। Jesus shed His blood on the cross for us. यीशु ने अपना लहू क्रूस पर हमारे लिए बहाया। We are washed by His blood. उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध In किए गए। Galatians 5:19 to 21. गलाती 5:19 से 21 में, In Romans 1:29 to 31. रोमी 1:29 से 31 तक Paul talks about the nature of the flesh. पौलुस हमारे शरीर के प्रकृति के बारे में बताता है। Our flesh always seeks to sin. हमारा शरीर हमेशा पाप करना चाहता है। As David says in Psalm 51:1 to 3 and 5. जैसे दाऊद भजन संगीता 51 उसका 1 से 3 और 5 में कहता We है, all were formed in sin. हम सब के सब पाप में ही बनाए गए थे, So all that the flesh can think about is sin. इसलिए हमारा शरीर सिर्फ पाप के बारे में ही सोच सकता है। So when we accept the Lord Jesus, इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, we are washed by His blood. हम उसके लहू से धोए We जाते हैं, become a new creation. हम नई सृष्टि बन जाते हैं। We are just like a house which is empty and clean. हम एक घर के समान होते हैं जो बिल्कुल खाली और साफ होता है। But what is a house for? मगर एक घर किसके लिए है? Somebody should live in that house. उसके अंदर किसी को रहना पड़ता है, Otherwise it is a haunted place. नहीं तो वो एक भूता मकान हो जाएगा। So even if you are a clean house, इसलिए अगर आप एक साफ सुथरा घर हैं तो भी washed by the blood of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा you साफ किए should होने के have the बाद power of the Holy Spirit dwelling in you. आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ होना चाहिए, Otherwise you cannot remain clean. नहीं तो आप साफ नहीं रह पाएंगे।
You will be carried away by the world. आप इस संसार के द्वारा उठा लिए We जाएंगे। face so much of temptations in this world. इस संसार में हम कई परीक्षाओं का सामना करते We हैं। have so much of problems. हमारे सामने कई समस्याएं Can आती हैं। anyone say, I do not have any problem at all? क्या कोई कह सकता है कि मेरे कोई समस्या नहीं है? Can anyone say? क्या कोई कह सकता है? No. नहीं। In everyone born as a human being has a problem. हर एक जो mनुष्य की तरह पैदा हुआ है उसमें समस्याएं होती हैं। A child will cry for a chocolate. एक छोटा बच्चा चॉकलेट के लिए रोता है। A little bigger child will cry for toys. थोड़ा और बड़ा बच्चा खिलौनों के लिए रोता है। A young girl or a young woman will have a different set of needs. एक जवान लड़का और एक जवान लड़की के अलग अलग They जरूरतें need होती हैं। good dresses and friends. उनको अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, They need wisdom for education. उनको बुद्धि चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। As you grow, और जैसे आप बढ़ते हैं, as you mature, जैसे आप परिपक्व होते हैं, your problems changes. आपकी परेशानियां अलग होती जाती As हैं। parents, we are worried about our children. माँ बाप होने के नाते हम अपने बच्चों के प्रति चिंतित रहते हैं। Grandparents are worried about their grandchildren. दादा दादी नाना नानी अपने नाती पोतों के लिए चिंतित थे। So till a person's death, इसलिए जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती, everyone faces different kinds of problems in their life. हर एक के जिंदगी में अलग अलग तरीके की समस्याएं आती रहती हैं। But the Lord said, परंतु परमेश्वर you कहता है, have a support system. आपके पास एक सहायक है, You have somebody to carry you through your life. आपके पास कोई है जो आपके जीवन में आपको चलने में मदद करता है, And that is the Holy Spirit. और वही पवित्र आत्मा है। That is why Jesus says in John chapter 16 verse 8. इसीलिए ही यीशु कहता है यूहन्ना 16 उसके 8 John में, 14, 16 and 17. यूहन्ना 14, 16 और 17 में, When he comes, जब वो आता है, he will teach you all that is the truth. वो आपको वो सब सिखाएगा जो सत्य है। He will teach you everything. वो आपको सब कुछ सिखाएगा। So as a comforter, सांत्वना देने वाले होने के नाते, as a deliverer, छुटकारा देने वाला होने के नाते, what does the Holy Spirit do for us? पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है? First of all, पहली बात, he delivers us from our own self. वो हमें अपने आप से छुटकारा देता है। He delivers us from all our evil, selfish nature. वो हमारे अपने बुरे कामों से और चरित्रों से हमें छुटकारा देता है। That is why I told you, Paul talks about our nature being evil right from birth. यही मैं आपसे कह रही थी कि पौलुस कहता है हमारे शरीर की बुरी अभिलाषाएं और प्रकृति के बारे में। But when the Holy Spirit comes in you, परंतु जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, He changes your nature completely. वो आपके चरित्र को बिल्कुल बदल देता है। Once you become a Christian, एक बार जब आप मसीह बन जाते हैं, it does not mean that you are perfect. इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिपूर्ण या सिद्ध हैं। Sometimes you will meet worse Christians than other people. कभी कभी आप ऐसे बुरे मसीहों से मिलेंगे जो कि साधारण लोगों से भी बुरे हैं। There are many Christians who live denying Christ. ऐसे कई मसीह हैं जो मसीह का त्याग करके जीते हैं। That is why the Bible says, इसीलिए बाइबल कहता है, even if you are washed by the blood of Jesus, अगर आप मसीह के लहू से धुले हैं तो भी that alone is the ticket to heaven. अकेले वही काफी है स्वर्ग जाने के लिए। But that is not enough. मगर वो काफी नहीं है। To continue your life as a Christian, एक मसीह जीवन लगातार जीने के लिए you should have the Holy Spirit in you. आपके अंदर पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। That is why in Romans 8, 5 and 29, इसीलिए रोमी 8 का 5 और 9 Paul says, पौलुस कहता है, first we were all sinful, पहले हम सब पापी थे, but now we are being transformed into His image. परंतु अब हम उसके स्वरूप में परिवर्तित हो रहे हैं।
When we believe in the Son of God, जब हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं, the Holy Spirit in us पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है changes our selfish nature. हमारे स्वार्थी चरित्र को वो बदल देता है। Maybe once before your eyes were not holy, शायद पहले आपकी आंखें पवित्र ना थीं, but when the Holy Spirit is in you, मगर जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता your है eyes become holy. आपकी आंखें पवित्र हो जाती हैं। Maybe before you were talking all bad words, पहले शायद आप सारी बुरी बातें बोलते होंगे, but when the Holy Spirit is in you, मगर जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता the है bad words will not come from your mouth. वो बुरी बातें हमारे मुंह से नहीं निकलती। Maybe where before you were jealous about other people, शायद पहले आप दूसरों के बारे में जलन रखते थे, but when you have the Holy Spirit, परंतु जब आपके पास पवित्र आत्मा है you will only have love and compassion. आप में सिर्फ प्रेम और दया ही पाया जाएगा। All these evil things will not exist in your life. ये सारी बुरी चीजें आपके जीवन में ना होंगी। Some time back, a mother had an only son. कुछ समय पहले एक माँ का सिर्फ अकेला बेटा था। She was working as a teacher. वो एक शिक्षक के रूप में काम करती थी। She was working very hard to educate her son. वो बहुत मेहनत करती थी कि वो अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा सके। Her husband had died long back in an accident. उसका पति बहुत समय पहले एक दुर्घटना में खत्म हो गया था, So all her hope was on this boy. इसलिए पूरी की पूरी आशा उसकी इस बेटे पर थी। But one day when this boy was returning from college, मगर एक दिन जब ये लड़का कॉलेज से वापस आ रहा था, he met with an accident and died. वो एक दुर्घटना में पड़ गया। Not exactly died, he lost consciousness. वो मरा तो नहीं परंतु बेहोश हो गया। He went into a deep coma. वो बहुत ही गहरे कोमा में The चला गया। doctor said his brain is severely damaged. डॉक्टरों ने कहा कि उसका दिमाग बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो We चुका है, cannot save his life. अब उसका जीवन बचाया नहीं जा सकता। So immediately what this mother did, तुरंत ही ये माँ ने क्या किया, even in this great sorrow, इस बड़े दुख के समय में भी she decided to donate all organs to others. उन्होंने निर्णय लिया कि अपने बेटे के सारे अंग दूसरों को दान में दे देंगी। This young man's heart was donated to somebody else. इस जवान लड़के का दिल किसी और को दे दिया गया। This young man's eyes were given to someone else. उसकी आंखें किसी और को दी गईं। This young man's liver was given to another patient. उसका लिवर दूसरे एक मरीज को दिया गया। In order to transplant all these organs, donate all these organs, ये सारा ट्रांसप्लांट करने के लिए या फिर अंग दान the देने के लिए entire city was stopped for several minutes. पूरा का पूरा शहर कुछ क्षणों के लिए रोक दिया गया, Because the ambulances had to take all these organs within few minutes to the patient. क्योंकि एम्बुलेंसों को ये सारे अंग लेकर कुछ ही मिनटों के अंदर दूसरे मरीजों के पास पहुंचना था। Everything was stopped. सब कुछ रोक दिया गया। But ultimately, अंत में when everything was over, जब सब कुछ खत्म you हो know चुका, what this mother said? ये माँ ने क्या कहा आपको मालूम My है? son is no longer dead. मेरा बेटा अब मृत नहीं है। He lives through 3 other people. वो 3 अलग अलग लोगों के द्वारा जीवित है, Because his heart is beating in somebody else. क्योंकि उसका दिल अभी भी किसी के अंदर धड़क रहा है। His liver is working in someone else. उसका लिवर किसी और के अंदर काम कर रहा है। His eyes are seeing through someone else. उसकी आंखें किसी और के द्वारा देख रही हैं। Similarly, उसी when the समान Holy Spirit comes inside you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आती है, your flesh dies. आपका शरीर खत्म हो Your जाता है, selfish nature dies. आपका स्वार्थीपन खत्म हो जाता है। God lives inside you. परमेश्वर आपके अंदर जीता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God lives inside you.
परमेश्वर आपके अंदर जीवित है। How many of you want this God to be in? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये परमेश्वर आपके साथ हों? We should always need the power of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमेशा चाहिए रहता My है। beloved friends, मेरे प्रिय मित्रों, this world is becoming a very dangerous and terrible place. ये संसार बहुत ही खतरनाक और बुरा बनता जा रहा है। We are facing new challenges every day. हर रोज हम नए चुनौतियों का सामना करते हैं। So for us to be victorious, इसलिए जय पाने के लिए we need the power of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। What is the difference between you and another person if the Holy Spirit is not inside you? अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप और दूसरे एक व्यक्ति में क्या अंतर है? When we are his child, जब हम उसके बच्चे होते हैं but we still do not change, मगर तब भी बदलते नहीं हैं, when the power of the Holy Spirit is not inside us, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर we नहीं also होता, talk bad things. हम भी बुरी बातें करते हैं। The other person in the world also talks bad things. संसार में वो दूसरा जो व्यक्ति है वो भी बुरी बातें करता He है। also does bad things to his neighbors. वो भी अपने पड़ोसियों के विरुद्ध बुरे काम करता है। We also do bad things to our neighbor. हम भी अपने पड़ोसियों के विरुद्ध बुरे काम करते हैं। So what is the difference between a Christian, a man of God, and the others? तो एक मसीह यानी परमेश्वर के बच्चे और दूसरे एक व्यक्ति में क्या अंतर रह जाता है? Only when the Holy Spirit is in you, सिर्फ पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होता है तभी you can see a change in your life. आप अपने जीवन में एक बदलाव को देख Your सकते हैं। life will change completely. आपका जीवन परिपूर्ण तौर से बदल All the जाएगा। small things of the past, पुरानी छोटी छोटी बातें, all the small things of your old life आपके पुराने जीवन की छोटी छोटी बातें will vanish away. वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। Suppose if you go for an operation, मान लीजिए आप एक ऑपरेशन के लिए जाते हैं, the scar remains in your body for a long time. आपके शरीर में वो निशान बहुत समय के लिए रहता है। But when the Holy Spirit comes inside you, मगर जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता the है, scars of the old life will not be in you. आपके पुराने जीवन के जो निशान रह जाते हैं वो हट जाते हैं और दूर हो जाते हैं। You will not remember it anymore. आप उसको याद भी नहीं So करोगे। today, इसलिए आज we are going to pray for the power of the Holy Spirit to come upon us. हम पवित्र आत्मा का वो सामर्थ हमारे अंदर आने के लिए प्रार्थना The करेंगे। Bible says in Matthew chapter 7 verse 7, बाइबल मत्ती 7:7 में कहता है, whoever asks receives. जो कोई मांगता है उसको मिलता है, Ask and you will receive. मांगो और तुम्हें मिलेगा। He is able to give you every good thing. वो आपको सब भली वस्तु देने के लिए सामर्थी है। So today, whoever you might be, इसलिए आज आप जो कोई क्यों ना हो, as long as you know the Jesus as your Savior, आप अगर यीशु को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर जानते ask the हैं, Lord Jesus, यीशु से मांगे, fill me with your Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे प्रभु। Fill me with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर दे मुझे। Change my life. मेरे जीवन को बदल दे। Change my life. मेरे जीवन को बदल दे। Today you are going to see a big difference. आज आप एक बहुत बड़े बदलाव को देखेंगे। Jesus, fill my people. यीशु मेरे लोगों को तू भर दे। Fill my people. मेरे लोगों को भर दे। Let your power fall upon them. तेरा सामर्थ उनके ऊपर आने पाए Change all their old nature. और उनके पुराने चरित्र को तू दूर कर दे। Give them holiness. उनको पवित्रताई दे। Transform their sinful life. उनके पापमय जीवन को बदल दे। Open your mouth and ask. अपने मुंह को खोले और Jesus, मांगे, fill me. यीशु मुझे भर दे। I need the power of the Spirit. मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ I चाहिए। need the power of the Holy Spirit.
मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ Now the चाहिए। Lord is anointing everyone. प्रभु सबको अभी अभिषिक्त The करता Lord है, is filling everyone. सबको वो भरता Where है। the Holy Spirit is, there is no place for evil. जहाँ पे पवित्र आत्मा है वहाँ पे बुराई का कोई काम नहीं। Where the Spirit of God is, there is no place for Satan. जहाँ पे परमेश्वर की आत्मा है शैतान के लिए कोई जगह नहीं रहती। Transform their life completely. उनके जीवन को तू पूरी तरह से परिवर्तित Change कर their दे, life completely. उनके जीवन को तू बदल दे, Take away the bad habits. उनकी बुरी आदतों को तू हटा दे, Take away the bad relationships. उनके बुरे रिश्तों को तू हटा दे, Fill them, Lord Jesus. उनको भर दे प्रभु यीशु। You might be in the bondage of sickness. शायद आप बीमारी के बंधन में हो, You might be in the bondage of the evil people. शायद आप बुरे लोगों के बंधन में हो, But today the Lord is delivering you. मगर आज प्रभु आपको छुटकारा देता है। Jesus will deliver you. यीशु आपको छुटकारा देता Jesus है, will give you healing. यीशु आपको स्वस्थ करता है, Jesus will give you happiness. यीशु आपको आनंद देता है। Shantama, शांतम्मा, Shantama, you are crying every day. आप हर रोज रोती हैं, You have no peace. आपके अंदर शांति नहीं, Your family, there is always fighting. आपके परिवार में हमेशा झगड़ा But है, today the Lord is giving you peace. परंतु आज परमेश्वर आपको शांति The देता Lord है, is giving you joy. परमेश्वर आपको आनंद देता Some of है। you are praying for a promotion in your job. आप में से कुछ लोग अपने काम में प्रमोशन के लिए The प्रार्थना Lord करते is हैं, promoting you. परमेश्वर आपको प्रमोशन देता है। Some of you are praying for your children. कुछ लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, You are praying for the salvation of your children. आप चाहते हैं कि उनको उद्धार The Lord मिले। is hearing your tears right now. आपके आंसुओं को परमेश्वर आज He देखता will है, certainly touch them. वो जरूर उनको छुएगा, He will certainly touch them. वो जरूर उनको छुएगा। Lord Jesus, प्रभु यीशु, wipe away the tears of my people. अब मेरे लोगों के आंसुओं को तू पोंछ Wipe away दे, the tears of my people. मेरे लोगों के आंसुओं को तू पोंछ दे। If there's anybody who has not accepted you, अगर कोई ऐसा है जिसने आपको ग्रहण नहीं किया, Lord Jesus, come into their hearts. प्रभु यीशु उनके दिलों में तू आ Come जा, into their hearts. प्रभु यीशु दिलों में आ जा, Give them abundance of peace and joy. बहुत आयत की शांति और आनंद उनको दे। We thank you for hearing our prayers. धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। We thank you for blessing our people. धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे लोगों को आशीष दिया है। In the name of Jesus I pray. यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, Amen. आमीन।